Good morning. morning, sir. Happy morning, sir. Joyful morning. Good morning, sir. Happy New Year. Good morning, Good sir. morning, Good sir. morning, sir. Happy Very morning. good morning. Good Good morning, morning. sir. Morning, sir. Magical morning, sir. So today I am traveling. Actually, I am traveling to Mulchi. Mulchi करके एक जगह है near Mumbai. So it's a Mulchi Dam. So there is some donation program happening over there. A lot of VIPs are coming and they have invited me. So I'm on the way to just attend that function. But anyway, today आज हमने एक बहुत अच्छा program line up किया है, and that is about parenting. So so I will be attending the session, but because I'm traveling, so Vijay Naidu will take the session today about parenting. ये parenting क्या होता है? I'll just brief something about it. So there is one Mr. Bhavin Shah. इन्होंने वो parenting के classes लेते हैं and lot of things to learn from him. So even I had attended one session of Bhavin Shah in Nagpur. And it was a very eye-opening session for me. तो आज मैं आपको एक short में I want to share with you that the sessions what we are doing is I am living an amazing life. मैं एक अद्भुत जिंदगी जी रहा हूं और हम इस अद्भुत जिंदगी में अपने सपने पूरे कर रहे हैं. हम बड़े सपने देखते हैं और बड़े सपनों को पूरा करते हैं. And one of the most important aspect to accomplish your dreams is the blessings of your parents. So let me share with you, there are only two people in this world. इस दुनिया में दो ही लोग हैं जो आपको पावर दे सकते हैं, जो आपको शक्ति दे सकते हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं. और वो होते हैं तुम्हारा आपका सोच रिलेशनशिप. सोच रिलेशनशिप होता है योर फादर एंड योर मदर. अगर आपके संबंध पेरेंट्स के साथ अच्छे नहीं होंगे तो देयर आर चांसेस यू माइट स्ट्रगल इन योर लाइफ. यू माइट फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस इन योर लाइफ. और ये मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि in my life also I have experienced this. Throughout my life I was always complaining with my father. Mothers का तो कोई issue नहीं था, but my father I used to always complain. My father प्यार नहीं करते मुझे, he hates me, you know, all those type. How many of you all still feel, you know, boys में particularly होता है. I don't know about girls. Girls को थोड़ा mother से होता है complaints, but boys generally I have seen they complain about their father. So now this is very natural. And since I was a boy, since I was a kid, there were so many incidences that shaped, that got a thought into me that my father does not love me. अब ये सी चीज चलता रहा. And then I attended some programs, Landmark Forum, जहां मुझे समझ में आया और वहां से मेरा वो निकला. And then I realized कि अगर सपने बड़े देखने हैं तो you cannot complain about your parents. You have to instead love them. और जो भी पापा ने किया उन्हें जो ठीक लगा वो बराबर किया उन्होंने. एंड एब्सोल्युटली आज तक कोई भी ऐसे पेरेंट्स नहीं रहते हैं कि जो अपने बच्चों को कुछ अच्छा नहीं देते हैं. बट क्योंकि मैं बच्चा था, बिकॉज आई वॉज अ किड, समझता नहीं था ना. अब माइंड में बैठ गया तो बैठ गया, अब उसको निकालना पड़ता है. छोटे बच्चे के दिमाग में कुछ बैठ गया है, उसको बाहर निकालना पड़ता है. एंड देयर इज अ प्रोसेस that maybe next week I will share with you about this particular topic. But today we will learn how to program your child's mind, how to do parenting from Vijay Naidu. क्योंकि विजय नायडू जी ने ये प्रोग्राम अटेंड किया है. So let us welcome Vijay. Vijay, you are there, right? Yeah. Thank you, sir. Thank Yes. you so much. Thank Very you good so morning. much. Thank you so much, Vijay, for the Yes. support. And today Yes. we have Sandeep Kaur. Sandeep Kaur, personally, I am very, very impressed with that lady. उन्होंने जो अपने लाइफ में जो टर्न अराउंड किया है एंड हाउ पावरफुल शी हैज बिकम. शी इज रियली अ सुल्तान. आज उनकी स्टोरी सुनना बहुत मजा आएगा. वेरी इंस्पायरिंग, वेरी पावरफुल. थैंक यू सो मच. सो ओवर टू यू विजय. Yeah, sir. Thank you so much, sir. Thank you for this amazing session, जिससे हम लोग ऐसे स्टार्स लोग से मिल सकते हैं और कनेक्ट रहते हैं हम लोग. Thank you so much. Thank you. So let's begin.
वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। या सबसे पहले ना, हमारे मैजिक बुक में भी जब हम स्टार्ट करते हैं तो मैजिक बुक में भी पहला जो चैप्टर रहता है, अपार्ट फ्रॉम ग्रेटिट्यूड एंड मैजिक स्टोन, जो रिलेशन से स्टार्ट होता है, राइट। तो हमारे लाइफ में रिलेशनशिप, हेल्थ एंड मनी, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करते हैं, बाकी तो सब उसके आसपास ही है। तो वहां पे भी हम रिलेशन से स्टार्ट करते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप इज। अगर आप समझोगे कि रिलेशनशिप अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रिलेशन है? यस, सबसे पहले हमारा रिलेशन आता है सबसे नजदीक का, बच्चों से। नो डाउट हम मदर फादर से भी बहुत प्यार करते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा उसको जजमेंटल उसमें देखोगे तो हमारा झुकाव बच्चे कैसे, बच्चे कहाँ, बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर रहता है। आपको मालूम, फादर मदर तो सेटल हो चुके हैं, तो हमारी सबसे ज्यादा चिंता वहीं रहती है। और सबसे ज्यादा दुख भी वहीं से अगर मिलता है, अगर आपको दुख मिलता है कभी रिलेशन में, तो सबसे ज्यादा दुख भी वहीं मिलता है। तो ये क्या ही है ऐसा रिलेशन कि क्यों ये सब हो रहा है? जिनके बहुत अच्छे रिलेशन है, कॉर्डियल रिलेशनशिप्स है, दैट्स ओके, बट बहुत जगह इतने दरारें पड़ चुकी रिलेशंस में कि उसको जोड़ना एक बहुत बड़ा उनके लिए एक मतलब जीने की जिद, जिद्दा क्या बोलते हैं ना, शिद्दत पूरी लगा देते हो उसको कैसे रिलेशन ठीक करने, बट स्टिल वो रिलेशन ठीक नहीं होते, क्योंकि उसका बीज है ना, बचपन में बोया जाता है। जैसे राजन भाई बार 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 बोलते हैं कि बच्चों का माइंड 7 इयर्स तक प्रोग्राम हो जाता है। अब उस 7 इयर्स तक तुमने कैसे उनके माइंड प्रोग्राम किए? सबसे पहले बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमारे घर से ही शुरू होती है, हमने कैसे उनको प्रोग्राम किया माइंड, कैसे उनको हमने ट्रीट किए, वहीं से वो स्टार्ट होता है। तो मैजिक बुक तो बहुत जरूरी है, बाकी बहुत सारी चीजें जरूरी है, बट मेरे हिसाब से हमेशा मैं मानता हूँ कि पेरेंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, हमको लगता है बच्चे को हमको काउंसलिंग करना है। बच्चों को जरूरत नहीं काउंसलिंग की, वो वैसे ही प्योर रहते हैं। काउंसलिंग की और अगर सेशंस की जरूरत है तो हम पेरेंट्स लोगों की है। इवन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सभी लोग ने ये सब सीखना चाहिए कि कैसे पेरेंटिंग किया जाए। हमको लग रहा है हमारे को जो जिस तरह से पाला गया था, हम हमारे एग्जाम्पल देते हैं, हमारे को तो मम्मी एक मारती थी तो हम लाइन्स लग जाती थी। अब वो जमाना नहीं रहा, आपको टेक्निक सीखना होगा। तो बोलेंगे बच्चों को भी पालने की टेक्निक, यस, दे आर टेक्निक्स। तो वो टेक्निक्स जैसे राजन भाई ने बताया, भाविन शाह और उनके ब्रदर है चिराग शाह। तो शाह लोगों का तो जलवा ही है आजकल। राजन भाई के बाद में अगर वो बहुत जिस तरह से राजन भाई ले रहे हैं ना सेशंस, कंटिन्यूस लोगों को जोड़ना, ये करना, उस तरह से वो गुजरात से ये लोग बहुत अच्छे सेशन है, इनकी बहुत जबरदस्त टीम है। मैं भी उनकी टीम में हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो 8 दिन में वो लोग सेशंस लेते, बट कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स बताऊंगा सो दैट आप लोग मोटिवेट हो उस सेशन को ज्वाइन करने। अगर मैं बोलूंगा जुड़ जाओ, आप नहीं जुड़ेंगे। जैसे बोलूंगा कोई पिक्चर देखो तो आप देखोगे कि नहीं ना। थोड़ा सा उसका कंटेंट मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में, थोड़ी बात इधर की उधर हो सकती है आगे पीछे का, बट आपको वो बता रहा हूँ कि कैसे कैसे वहाँ पे आपको हैंडलिंग करना होता है बच्चों को, कैसे कैसे टेक्निक्स होती है, कैसे कैसे टेक्निक्स यूज करना होता है। जैसे हम देखते हैं ना आजकल बहुत माँ बाप लोगों को लोग ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। तो हम सबसे पहले ना, सबसे ज्यादा मेरे नजर से उस बच्चों को हम कोसते कि कैसा बच्चा है कि अपने माँ बाप को ओल्ड एज में छोड़ दिया है। बट अगर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो मैं मानता हूँ ये बात को कि उस माँ बाप की भी गलती है ना, उनकी परवरिश में कहीं ना कुछ तो कमी रखा होगा। तो ताली दोनों हाथ से बजती है, बट स्टिल कितना भी हो, माँ बाप होते हैं, ये सब तो करना नहीं चाहिए। उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब करते हैं, कोई कमी नहीं रखते, फिर शादी करते हैं। फिर शादी होती, फिर क्या होता पता नहीं, कुछ दिन के बाद वो कुछ कई लोग ओल्ड एज पेरेंट होम में चले जाते हैं। तो इसके बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, क्योंकि इसका सब एक रीजन है इसका सब चीज का, कि बॉन्डिंग नहीं है। बॉन्डिंग जिस तरह से बॉन्डिंग होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो बाउंडिंग नहीं रहती है। तो बाउंडिंग के कारण ना, वो रिलेशन जरूर है, आप बोलेंगे कि मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, बट वो करता है क्या, वो करती है क्या, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो बॉन्डिंग कैसे लाना ना, तो ये इनका इस पेरेंटिंग सेशन का मकसद ही है कि बच्चे माँ बाप के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग हो। देखो, रिलेशन अलग होना अलग होता है माँ बाप का, और बॉन्डिंग होना अलग बात होती है।
तो बॉन्डिंग कैसे मजबूत करना, तो वो आपको बचपन से ही उस तरह से हैंडलिंग अगर करते हो तो आपसे वो आप ही आप बॉन्डिंग हो जाएगा, आप ही आप बॉन्ड हो जाएगा उसका। तो उनके कई पॉइंट्स रहते हैं, कुछ टिप्स है, मैं आपको एक शॉर्ट में बताता, बिकॉज ऑल मस्ट बी वेटिंग फॉर संदीप्स शेयरिंग। सबसे पहले तो ना, बच्चों के कान नहीं होते, दे डोंट हैव ईयर्स। दैट मीन्स टू से कि वो लोग सुनते नहीं है। आप कितने भी लेक्चर दो, बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा करना, वो सुनेंगे जरूर लेकिन उसको फॉलो नहीं करेंगे। दे ऑब्जर्व व्हाट यू डू। आप जो करते हैं ना, वो उसको फॉलो करते हो, आप जो बोलते हो उसको नहीं फॉलो करते। इसलिए सबसे पहले तो आपको अगर कुछ बच्चे को बनाना है, यू फॉलो, यू लीड द बाय एग्जाम्पल। आपको वैसा करना है, तब वो आपको फॉलो करेंगे। आप बोलेंगे अरे टीवी मत देखा कर, मोबाइल मत देखा कर, सो जाओ, और आप रात के 12-1 बजे तक जाग रहे हो, तो वो देखेगा क्या, वो छोड़ेगा क्या? वो भी बैठे रहेगा आप पे, और आप फिर बोल नहीं पाओगे उसको। तो इस तरह से आपको यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, राइट? तो उनको ज्ञान ज्यादा नहीं लगता है, वो चिढ़ जाते ज्यादा। आप अगर ज्ञान दोगे ना, ऐसा करो वैसा करो, हमारे टाइम पे तो हम ऐसा करते थे, तुम लोग ऐसे हो, और इरिटेट हो जाएंगे और उल्टा करेंगे। इसलिए यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, राइट? फिर उनकी ना बातों को आपको ध्यान से सुनना है। जब वो छोटे बच्चे रहते हैं या बड़े भी होते हैं ना, जैसे बूढ़े माँ बाप जो होते हैं ना, उनके लिए भी ये लागू होता है। उनकी बात है ना, बूढ़े लोगों की जो है ना, सिर्फ आप सुनिए, आप कुछ मत बोलिए। 2-3 बार भी बोल रहे हैं ना, तो सुनिए। माँ बाप की रहते हैं, जो बुजुर्ग घर में रहते हैं, दादा दादी, उनकी सिर्फ बात सुनो बस, ध्यान से। ऐसा नहीं कि इधर काम कर रहे, मोबाइल देख रहे और बैठे सुन रहे। वो भी थोड़ी देर क्या सोचते हैं, सुन नहीं रहा। ध्यान दे के सुनिए, हो सकता है दूसरी तीसरी बार बोल रहा हो। तो वैसे ही सेम है ना, बच्चों के साथ रहता है। बोलते हैं ना, वापिस बचपन आता है जब बूढ़े होते हैं। तो बच्चों की भी बात हम क्या होता कि आता है, कुछ बोलना चाहता, रुक जाओ अभी मैं काम में हूँ। पापा रहेंगे तो मोबाइल ना, मेरे बेटा देख मैं काम कर रहा हूँ, देख रहा है ना। माँ भी बोलेंगी मैं काम कर रही हूँ बाद में। तो वो बच्चा ना थोड़ा सा, आपको नहीं समझ में आता, बट अंदर से हल्का सा टूट जाता है, अरे मेरी बात ही नहीं सुन रहे। और फिर जब वो आके कुछ बताता है आपको, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, या उसके साथ मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो हम क्या करते हैं, पहले जैसे स्कूल से आता है, कुछ गलती होगी, टीचर ने डांट दी, या होना करके गलती क्या है, तो वो जब आपको बात करने आता है ना, तो हम पहले स्टार्ट हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, गलती तो तुम्हारी होगी, मैं तुमको जानती हूँ, मैं तुमको जानता हूँ कि तुम कैसे हो। वो टीचर का दुश्मन है क्या? नहीं, हम इस तरह से ना उसी को ब्लेम करना चालू कर देते हैं। अब वो क्या होता है, एक तो वहां उसने, जब वो गलती करता है ना, तो पनिशमेंट लेके आ जाता है, आपको नहीं बताता। बट जहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि उसने गलती नहीं किया रहता, बट स्टिल उसको ब्लेम किया जाता है, या पनिशमेंट किया जाता है, या बातें सुननी होती है, तो वो अपनी बात ना सबसे पहले कहाँ शेयर करेंगे, माँ बाप को। और वहां उल्टा आपने उसको सुनाना स्टार्ट कर दिए, तो क्या होगा, वो 2-3 बार सुनेगा, उसके बाद बोलेगा वहां पे भी मैं सुन ही रहा हूँ, गलत नहीं हूँ, पर सह रहा हूँ, यहाँ पे भी आके सह रहा हूँ। अगली बार से आपको बताना बंद कर देगा। और जब वो बताना बंद कर देगा ना, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसने बताना बंद कर दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम जब बड़ा हो जाता है, जब वो मेच्योर्ड हो जाता है, कॉन्शियस माइंड में आ चुका रहता है, उसके बाद में वो ये सब चीज कॉन्शियस माइंड में आने के बाद ही करता है। ठीक है, 7 साल तक तो बहुत बढ़िया चलता है उनका। उसके बाद फिर आप बोलते कि अरे ये कुछ शेयर ही नहीं करता है बच्चा, आता है चुपचाप गुमसुम रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है, पूछे तो नहीं बताता, फिर इसके दोस्तों को पूछना पड़ता। ये आपको ऐसा लगता है कि इसका स्वभाव है, ऐसा कर दिया इसने। एक्चुअली वो स्वभाव बनाए आपने। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि उनकी बातें सुने, और एकदम से रिएक्ट ना करे, एकदम से उसके ऊपर आंसर देने की जल्दी ना करे, समझे उसको। हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपने इमोशंस के बारे में सोचते रहते हैं, अपने इमोशंस के बारे में। वो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, उनसे दौर से वो गुजर रहा है, वो हम कभी नहीं ध्यान देते, सीधा उसको शुरू हो जाते। तो वो वहां से धीरे 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 हमसे ये होता है। तो इस तरह से बहुत सारे टिप्स है। फिर उनके इमोशंस को हमेशा समझना कि कौन से इमोशन में है। देखिए आदमी के ना, सब इंसानों के 4 स्वभाव रहते हैं, राइट? पावरफुल, परफेक्ट, पीसफुल एंड पॉपुलर। ये 4 नेचर सबके रहते हैं, हर किसी बाय बर्थ रहता है।
बस थोड़ा बहुत इधर उधर किसी के दो ये रह सकते, पर्सनालिटीज रह सकती, बट मैक्सिमम सबके ये चार पर्सनालिटी रहती। तो वो पर्सनालिटी के आसपास आप वैसे नहीं है, लेकिन हो सकता हो बच्चा वैसा हो। तो जैसे बोलते हैं ना, किसी को जज करना है, तो जैसे पूरे जानवरों की एक स्टोरी है। उनको बोला गया था कि सबको खड़ा किया गया और फिर बोले कि सबको, आपको उसमें मछली थी, शेर था और हिरन, कौवा, सब जानवर जितने होते हैं जंगल के, तो उनको बुलाया जाता है कि उनकी क्षमता, आपको उस तरफ पास किया जाएंगे, रैंकिंग मिलेंगी झाड़ पे चढ़ने की क्षमता के हिसाब से। तो कितना वो गलत होगा ना कि सबके जानवर अलग अलग है और हम बोलेंगे कि झाड़ पे कौन जल्दी चढ़ सकता। तो उसी तरह बच्चे भी रहते हैं, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। और नेवर कंपेयर। हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि देखो वो कैसा कर रहा है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, आप भाई भाई में भी कंपेयर करिए, भाई बहन में भी, तो वहां अंदर से वो टूट टूट जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। तो नेवर कंपेयर। हर बच्चा यूनिक है। वो आपका, उसको यूनिक आपको ढूंढना है क्या है उसमें, राइट। सो नेवर कंपेयर उनको। उनके इमोशंस को समझो। जैसे वो गुस्से में आया या इसमें आया, तो उसको लेक्चर देना मत स्टार्ट करो, क्योंकि वो अगर पीसफुल नेचर का है ना, ऐसे बच्चों को थोड़ी देर के लिए अलग छोड़ देना पड़ता है। बट ऐसा नहीं कि छोड़ ही दो या अलग रहने दो। उसको सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व करो और बोलो, लगता है आप, तुम बहुत गुस्से में हो या सैड दिख रहे हो, उसके इमोशंस को एक्सेप्ट करो, राइट। आई विल रिपीट द पर्सनालिटीज अगेन। कोई पूछ रहा है, पावरफुल, पीसफुल, परफेक्ट एंड पॉपुलर। ये चार पर्सनालिटी होती। इनके भी सेशंस होते हैं। ये हैप्पी फैमिली फाउंडेशन करके एक है, गुजरात सूरत में, वहां से ये करते हैं। मैं उनके उनके टीम में हूँ। तो मैं रिकमेंड करूंगा, बाद में तुम्हारे को लिंक भी देने वाला हूँ, राइट। सो उसके इमोशंस को समझो और उसके साथ हो जाओ कि चलो, उसको लगे कि हाँ चलो माँ बाप मेरे साथ है। अगर आप चालू हो जाएंगे, बेटा इतना सा हुआ, तो उसको पूछो भी मत ज्यादा कि क्या हो गया, कैसे हो गया, क्वेश्चंस मत करो। हम क्या करते हैं, अरे बता तो सही, मैं तेरी मदद। नो। हर बच्चे का नेचर ना, आपको वो कोर्स भी करना है, 4 ही दिन का सेशन होता है, पर्सनालिटी अवेयरनेस वर्कशॉप। आपको खुद का भी जो पर्सनालिटी है, हमको खुद को नहीं मालूम हमारी पर्सनालिटी क्या है। तो पहले तो खुद को जान लो, फिर अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों को भी जानना बहुत बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में। अगर आप पर्सनालिटी नहीं जानते, तो यू अगर बिहेव कर रहे हो उससे उस तरह से, तो वो हमेशा क्लैशेस होंगे। क्योंकि पीसफुल पर्सनालिटी है ना, उसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर, उसको पैम्परिंग, उसको ये सब पसंद नहीं है। उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उसके साथ हो जाओ। अगर वो कुछ बात करना चाहता है तो बात करो। तो सिर्फ उसको अपनी इच्छा जाहिर कर दो कि यस, मैं समझ सक रहा हूँ तेरे इमोशंस की, तू उदास दिख रहा है आज, कुछ बात हो गई है, ओके। बस उतना। पूछने जाओगे ना, वो और डिस्ट्रैक्ट होगा और चिढ़ जाएगा आपसे। तो एक एक पर्सनालिटी होती है, किसी किसी को अप्रिशिएशन की जरूरत होती है, वो समझना है आपको किसको क्या जरूरत है। उसको अप्रिशिएशन, उसको शोल्डर्स की जरूरत होती है कि वो चला आके रोले। तो हर पर्सनालिटी अलग अलग होती है। ये आपको, ये जो टिप्स बता रहा है, सबको एक जैसे नहीं नापना है, आपको समझना है कि इसकी पर्सनालिटी क्या है, राइट। तो वो उस तरह से आपको इमोशंस समझ के उसके साथ हो लेना है। उनकी उनकी फीलिंग आप समझ गए, राइट। और पता नहीं, हो सकता है ना बच्चा भी बहुत बार गलत करके आता है, ऐसा नहीं कि हमेशा उसके साथ रहना है, हमेशा उसकी गलतियों को भी हमको ढक लेना है, कुछ नहीं बोलना है। ये भी एक गलत तरीका है। हम बहुत बार गलत पैम्परिंग करते हैं, जबरदस्ती में झूठी तारीफ करते हैं। अरे तू तो बहुत बढ़िया बच्चा है, गलत भी करके आता, अरे नहीं कोई बात नहीं, होते रहता है। आप है ना, आपकी फीलिंग, जब उसकी फीलिंग समझ रहे हो ना, तो आपको अपनी फीलिंग भी उसको जताना है कि ये जो तूने किया है, ये करा है, ये मुझे पसंद नहीं। बस उतना बोलो, मुझे ये पसंद नहीं आया। अपनी फीलिंग भी बताओ, ऐसे नहीं कि हम उसकी गलती को पर्दा ढाक रहे। दैट इज वेरी डेंजरस। कई बार माँ बाप ना अपने बच्चों की गलती को पर्दा डाल देते, बट ऐसे भी नहीं कि खूब उसको बातें सुनाए, खूब मतलब उसको टॉर्चर कर डाले लिमिट तक के बोल के। बस आपकी इच्छा, आपकी फीलिंग्स जाहिर करो कि आई डिडंट लाइक दैट। बस उतना उसके लिए काफी है। जैसे कोई कोई हैबिट्स रहती है ना कि बच्चे टॉवेल गीला छोड़ देते हैं या जूते ला के फेंक देते हैं।
एक बार बताओ कि मुझे ये पसंद नहीं है, जो तू गीला टॉवल रख देता है या जूते आके उधर फेंक देता है, मुझे ये पसंद नहीं है। सेकंड टाइम क्या होता है, हम लोग फिर चालू हो जाते हैं, देख मैं तुझे कितने बार बताया हमने कि जूते ऐसे मत छोड़ा करो, टॉवल यहाँ मत छोड़ा करो, फिर वही करते वही काम करो, यानी हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। उसके बदले में सेकंड टाइम आप उसको सिर्फ बेटा बेटा जूते, जस्ट सिंगल वर्ड, बेटा टॉवल, बस उतना ही काफी है। लेक्चर मत दो, डोंट लूज योर एनर्जी। उसमें आप ना नेगेटिव में भी जा रहे हैं, घर में भी माहौल हो रहा है। बस सिंगल वर्ड, बेटा टॉवल। सो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस लगती है, देखो ये सुनने से नहीं होता, प्रैक्टिस लगती है, नोट डाउन की क्या क्या चीज हो रही है, राइट। और बहुत बार क्या होता है, जैसे बच्चे प्रश्न पूछते हैं ना, उसके उत्तर देने में जल्दी मत करो, कभी कभी आप ही फंस जाओगे। जस्ट वेट, एनालाइज करो, उससे पूछो आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या समझ रहे हैं इस क्वेश्चन से। और हमेशा ना बच्चे से जीतने की कोशिश मत करो। कई पेरेंट्स है, उनको लगता है कि मैं जीत जाऊं, ये तो बच्चा है, मैं ये मेरे को कैसे हरा सकता है। वहां आप जीत तो जाते हो टाइम बीइंग के लिए, बट एक्चुअली लाइफ में एक बहुत बड़ी बाजी हार जाते हो। तो कभी हमेशा ना मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ, हम लोग का ईगो भी वहां पे भी, बच्चों के साथ भी हम लोग कई बार ईगो की लड़ाई खेल लेते कि आई एम राइट, आई विल बी राइट। तो हर बार जीतना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हार जाया करो, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ओके ओके ओके, ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए, राइट। सुनो समझो और उसके बाद एक्सेप्ट करो उसको, राइट। और सबसे बड़ा है ना, एक लेबल लगा देते हैं हम लोग कि बुद्धू है, बेवकूफ है, अलाल है। ये लेबल कभी मत लगाओ। और यहाँ तक कि बहुत अच्छा बच्चा है, ये भी लेबल मत लगाओ, तू बहुत ही इंटेलिजेंट है ना, कोई भी चीज लेबल इज डेंजरस। आप बहुत अच्छे का भी लेवल बना दोगे ना, तो बहुत अच्छा बच्चा भी ना बहुत स्ट्रगल करता है लाइफ में। जब उसने मानने लग जाता मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तो कभी कुछ वो मस्ती नहीं करा सकता, शरारत नहीं कर पाता वो, क्योंकि आपने लेबल लगा दी कि तू बहुत अच्छा है, सीधा है, चुपचाप बैठता है। होता क्या है, वो ना अपने आप को फिर वैसा प्रोग्राम कर लेता है, और उसको फिर ना आगे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि लेबल लग चुका है, उसको लगता है मैं तो बहुत सीधा और अच्छा बच्चा, मेरी मम्मी पापा बोल रहे हैं। अब धीरे धीरे सोसाइटी को भी मालूम पड़ गया अच्छा बच्चा है, तो वो ना एक्चुअली खुल के अपनी लाइफ नहीं जी पाता। तो नेवर लेबल, उनको कोई छाप मत दो, बुरा छाप तो देना ही नहीं है, बहुत अच्छा है ये भी छाप देने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर प्रशंसा जो है ना, प्रशंसा भी हम सोचते हैं कि बच्चों को हमेशा प्रशंसा देना चाहिए, हमेशा उनको बैकअप करना चाहिए, बकअप करना चाहिए, तो वो भी गलत है। अगर आप वो थोड़ा सा भी, अगर उसने ड्राइंग बना के लाया, कई लोग ऐसे देखते हैं, अरे वाह क्या बढ़िया बना, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत अच्छा, और बना बेटा अच्छा। ये वो बच्चा ने समझ जाता, बहुत होशियार रहता है कि पापा ने मम्मा ने बस ऐसी प्रशंसा कर दी। आप जब प्रशंसा करता ना तो प्रिसाइसली करिए। जब वो खुशी से लाके आपको कोई ड्राइंग दिखा रहा है, तो उसको ध्यान से देखिए, तो उसको फीलिंग आएंगी, चलो मेरे ध्यान से देखा जा रहा है। फिर उसमें जो अच्छा कुछ बनाया होगा ना, जैसे फूल में कुछ कलर बहुत अच्छा भरा होगा, तो स्पेसिफिकली उसको बताइए कि जो तुमने फूल में जो ये रंग भर के इसकी जो बैकग्राउंड में शेड दिया ना, तो ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा। तो अगर आप स्पेसिफिक कुछ अच्छा बताओगे ना, तो वो बच्चा समझेगा कि नहीं, मेरी चीज को बहुत ध्यान से देखी गई, और वाकई में मेरा जो मैंने पाठ किया है उसका बहुत अच्छा अप्रिशिएशन किया गया है। या डांस करके दिखा रहा है या आपको गाना करके बता रहा है, तो उसको एक आध स्टेप अच्छा लगा, तो आप बताइए कि ये स्टेप जो तूने किया ना बहुत अच्छा लगा। तो उससे मोटिवेशन होगा। अगर आप सिर्फ झूठी तारीफ कर रहे हैं, फेक मतलब हवा में, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं करती, उल्टा वो सोचता है कि ऐसे ही मतलब फेंक दिया गया इस टाइप का। फिर उसको ना मददगार होने का रास्ता से बताया कि कैसे मददगार मददगार होना। क्योंकि लाइफ में ना हमको लगता है कि बस ग्रेटिट्यूड और ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है, बट मदद करना, सेवा देना, सेवा करना ना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप लाइफ में सेवा करोगे ना, सेवा इन द सेंस चैरिटी जो करते हैं हम लोग, किसी की मदद करते हैं,
तो आप जब दूसरों के लिए जियोगे ना कभी, तो लाइफ में कभी डिप्रेशन में नहीं आओगे, कभी। और हमेशा खुशी के माहौल में रहोगे। तो इसलिए बोला जाता है ना, सिर्फ सत्संग करने से ठीक नहीं होता। तुम सत्संग ही करते रहोगे तो काम नहीं करोगे। तो सेवा, साधना, सत्संग, ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। तो सबका ब्लेंड होना चाहिए। तो सेल्फलेस सर्विस, यस। तो इस तरह से ना उनको वो सिखाना जरूरी है। वो कब करेंगे, बोलने से नहीं होगा, आपको भी करना पड़ेगा पहले। तो देखो, साथ साथ में ना बच्चों को सिखाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बन गया, किसी को मैंने ये करना है ना, तो सिखाना है, तो सीखना है ना, तो सिखाना, तो बहुत जल्दी सीखते हो। तो उसके लिए ना आप भी उसको करिए, तो आपके साथ करेंगे सेल्फलेस, एंड दैट गिव्स ट्रेमेंडस फीलिंग, सबसे बेस्ट फीलिंग आती। पता है, ये सब चीजें जो ग्रेटिट्यूड की हम प्रैक्टिस करते हैं ना, ये क्यों करते हैं? गुड फीलिंग में आने के लिए। पूरा जो आप चाहते हैं, जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है, ये गुड फीलिंग में आने के लिए कर। जब गुड फीलिंग में आते हैं ना, देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग थिंग्स। तो गुड फीलिंग में आने के लिए जो जरूरत है ना, वो करना चाहिए। तो ये सेवा भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे चैरिटी करते हैं, सिर्फ पैसे दे देने से नहीं होता, याद रखिए। जो सेवा देते हैं ना, सेवा की भावना से अगर देते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको वो भी रास्ते उसको बताया करो। यस। और बहुत बार है ना, बच्चों को अगर नहीं सुनते बात, तो ना, आपको मालूम है कि अभी बोलूंगा कि सो रहा है, उठेगा नहीं। आप 10 बार बोलते रहो, नहीं उठेगा, आपको मालूम हो गया। उसको चॉइस दो, बेटा कब उठेगा। वो या तो खुद बोल देगा, अब देखो 7 बज रहे ऑलरेडी। वो तो बोलेगा नहीं ना 2 घंटे और नहीं उठूंगा। वो थोड़ा सा ही टाइम का मांगेंगे आपसे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बस। उसको एक्सेप्ट कर लो ना। नहीं तो आप 1 घंटा उठाते रहो, नहीं उठेगा। उसको चॉइस दो। बोलेगा पापा बस 5 मिनट्स, मम्मी बस 5 मिनट्स, बस वो टाइम देख लो, अभी 7 o'clock हो रहे बेटा, ओके। एक्सेप्ट करो उसको। और 5 मिनट के बाद जाके सिर्फ इतना बोलो, बेटा 5 मिनट्स हो गए, दैट्स ऑल। उसके लेक्चर में चल, तूने 5 बोला, देख तू ऐसे ही करता, फिर 10 मिनट करेगा। बस इतना बोलो, और थोड़ा सा समय दो, वहां खड़े रहो और निकल जाओ। वो उड़ जाएगा। जैसे मोबाइल खेल रहा है, सबसे बड़ा इश्यू तो वही है ना सबका। तो उसको आप सिर्फ बोले, बेटा काफी देर हो गया इसका स्क्रीन टाइम का, मेरे ख्याल से कुछ और करना चाहिए। कितने देर और दिखेगा? तो आपको बोलेगा ही, बस ये खत्म होता है 2 मिनट में, 4 मिनट, 5 मिनट, जो भी। ओके। वो आप देखना 5 मिनट के बाद ना रख देगा, पहले ही, आपके आने के पहले। या क्योंकि वो अभी जब भी सोया था, सोने के टाइम आपको याद दिलाना पड़ेगा कि बेटा तूने 5 मिनट बोला था। अभी वो जागा है, वो देख चुके रहेगा कि मैंने 5 मिनट बोला हूँ। तो 5 मिनट होते हैं, तो आपके पहले ही 5 मिनट के पहले रख देगा। तो ये ना, ये ऑप्शंस दो उसको, चॉइस दो उसको, थोपो मत। जैसे आपको किसी ने बोला ना, अभी के अभी मोबाइल रख। जैसे आप बड़े हो गए, आपको अगर कोई बोलता है कि अभी के अभी मोबाइल, या आप जो भी स्क्रीन देख रहे हो बंद करो और मेरे लिए काम करो, तो आपको कैसा लगेगा? तो वो फीलिंग है ना, उनकी भी समझा करो कि इस तरह से अगर मैं बोलूंगा तो वो तो और जिद पे आएगा। ठीक है, मैं रख तो दूंगा फोन, जैसे आप बोले ना कि अब भी रख और पढ़ाई कर। ठीक है, मैं रख तो दूंगा, मन ही मन सोचेंगे, लेकिन पढ़ाई तो नहीं करूंगा मैं। तो आपके डर के मारे जरूर रखेगा फोन, लेकिन वो पढ़ाई खुद इच्छा से नहीं करेगा। तो यू हैव टू गिव देम चॉइस। अभी पढ़ेगा कि थोड़ी देर से पढ़ेगा, अगेन। तो फिर ना सोचने का मौका देखेंगे। देखो, हमने ने क्या अपनी चीजें थोपा है बच्चों पे। अब वो ना उससे उससे पूछो कैसा करेगा। कैरियर में भी जैसे हम लोग एक्चुअली उनसे पूछना चाहिए, तू क्या करना चाहता है। तो वो जब एग्जाम्पल बताते हैं ना, अभी कितना टाइम हो रहा है, तो संदीप जी को भी समय देना है काफी। तो एग्जाम्पल जब वो बताते हैं ना वहाँ पे, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि माँ बाप रो देते हैं। उनको रियलाइज होता है कि हमने कितने गलत तरीके से ये कर रहे थे। और कई बार आप अपने आप को इमेजिन कर लेते हैं वहाँ की, यस मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ। तो मैं राजन सर से बहुत बार डिस्कस करता हूँ कि राजन भाई, हमको भी ये सेशन सीख के ना, हमारे को भी ऐसे सेशंस लेना है। और उनकी जो सेशंस होते हैं ना, 8 फ्राइडेज होते हैं। फ्राइडेज को लेते हैं वो, फ्राइडे फ्राइडे 8 o'clock स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेंदी होता है,
बट ठीक है, आप 8 बजे के बाद तो रात को फ्री हो जाते हैं। तो सबसे बढ़िया लाइफ में अगर किसी की बॉन्डिंग है तो बच्चों की है, तो पता नहीं कई लोग वो भी सेशन नहीं कर पाते। और पर्सनालिटी अवेयरनेस वर्कशॉप जो है उनकी, वो 4 दिन लेते हैं, वो एब्सोल्युटली फ्री रहता है। 4 अल्टरनेट डेज रहते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे टाइप का, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ऐसा टाइप का कुछ। वो फ्री रहता, बट पेरेंटिंग का 999 लेते हैं। वो लोग भी, एक हॉल रहता, ऑनलाइन रहता, ऑफलाइन रहती, उनकी टीम रहती, कोई भी पैसा नहीं लेता। जितनी टीम है निस्वार्थ काम करती है, क्योंकि मैं खुद उस टीम में था। तो निस्वार्थ सेवा करती है, और जो जूम वूम का जो खर्चा आता है उसको माइनस करके फिर वो एक बहुत अच्छी चैरिटी काम में काम करते हैं। यस। तो अनीता जी लिख रही है, उन्होंने भी किया है, मैंने काफी लोगों को बोलता रहता हूँ कि करो। तो पर्सनालिटी अवेयरनेस वर्कशॉप एंड पेरेंटिंग में सेशन का, दोनों सेशन की लिंक शेयर करेंगे ग्रुप में। आयुष को मैं दूंगा जब ये संदीप जी जब शेयर करेंगे ना, मैं शेयर करता हूँ। तो ये बहुत सारी इस टाइप की बातें, ये 8 हफ्ते की चीज मैं मतलब आधे घंटे में बता रहा हूँ। और उनके गलत गलत व्यवहार को परिणाम होने दें, यानी अगर वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, आपको पता है कि वो गलत कर रहा है, वो गलत हो रहा है, तो ना उसके परिणाम को उसको थोड़ा सा भुगतने दो। जब वो उसको भुगतने दो, हम क्या करते हैं, उसके पहले ही, कुछ आफत आने के पहले उसको हम कवच दे देते हैं। उसको वो भुगतने दो, अगर कुछ गलत किया तो उसको थोड़े दिन के लिए सजा भोगने दो, उसको एकदम करेक्ट मत करने जाओ। तो उसको ना एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। मुंह से आप लेक्चर दोगे ना तो वो उतनी बात नहीं समझेगा, जब वो भुगतेगा ना तो हमारा माँ बाप का ना दिल पसीज जाता है, यार यार बच्चा है, हम जान दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, हो गया, फिर खेल खत्म। तो उसको भुगतने दिया जाए उसको। और कभी भी जो चीज उसकी पसंद नहीं आई ना, पसंद नहीं आई कोई चीज आई, तो ना भावपूर्वक उसको ना अपनी चीज बताओ कि इस तरह से मुझे पसंद नहीं आई। उसके कैरेक्टर या चरित्र को ठेस नहीं लगना चाहिए। जब आप उसके कुछ गलती को करेक्ट करते हो ना, तो उसके चरित्र को, कैरेक्टर को बहुत कुछ की उसको दिल में दुखा के उसको वहां पे करेक्ट करने की कोशिश मत करिए। आपके भाव चेंज होंगे, ठीक है, गुस्सा दिखाओ, गुस्से दिखाने की एक्टिंग भी करना आपको जरूरी है। कई बार गुस्सा नहीं आता है, बट उसके चरित्र, उसके कैरेक्टर को ने ठेस मत पहुंचाओ। वहां अगर हर्ट होता है ना वो, तो वो गलती से सीखेगा नहीं, वो बोलेगा ठीक है अगली बार और इससे बड़ी करूंगा। कई बार ना बच्चे जिद में आ जाते हैं कि माँ बाप मुझे इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। कई बार इतना टॉर्चर होते बच्चे, तो वो देखते कि मैं इनसे बदला कैसा लूं, मैं इनको गलत कैसे प्रूफ कराऊं कि मैंने जो सोचा था वो सही है, ये लोग मेरे को जो जबरदस्ती करा रहे हैं, अब मैं इनसे बदला लूंगा। वो भूल जाता है कि बदला लेने में उसी की लाइफ खराब हो रही, और आपको ये नहीं समझ में आता कि आप अपने बच्चे की ही लाइफ को धूलमिल कर रहे हो। तो ये इतने जबरदस्त टेक्निक से आपको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार सेशंस करना चाहिए, कि मैंने एक्चुअली अब तक 2 बार कर चुका हूँ। आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न एंड लर्न फ्रॉम इट। तो ये मैं बहुत सारे मेरे दोस्तों को भी बोलता हूँ कि ठीक है, आपके बच्चे बड़े हो गए, आपके बच्चों के बच्चों को कराओ। क्योंकि हम लोग अभी जो मैजिक बुक और सब सेशन लेते हैं ना, मैं देखता हूँ 40+ लोग रहते हैं इसमें। इसमें भी बहुत लोगों की लाइफ हम चेंज कर रहे हैं, बहुत खुशी होती। बट मैं हमेशा इस चीज मानता कि बच्चे को ना, ये बच्चे हमारे फ्यूचर है, नॉट ओनली हमारे मतलब घर के नहीं, सोसाइटी के, कंट्री के फ्यूचर है। इसको अगर हमने ध्यान से उनको बराबर पेरेंटिंग किया ना, ये देश कहाँ के कहाँ निकल जाएगा। बस गलती हमारी है कि हम लोग को रियलाइजेशन नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट ये पेरेंटिंग सेशन है। तो विजय भाई, विजय जी, कैन आई समराइज दिस? आपने जो या समझाया आज वो, या ओके, सो थैंक यू। एक्चुअली इट वाज अ वेरी वेरी नाइस सेशन, जहां आई थिंक एवरीबडी शुड हैव मेड नोट्स। अगर आपने नोट्स नहीं बनाई हैं तो आई वुड रिकमेंड यू शुड वॉच दिस अगेन एंड मेक नोट्स। अब मैं गाड़ी में बैठे बैठे भी मैंने नोट्स बनाई हैं। पॉइंट नंबर 1, बच्चों को कान नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है ना? बार बार बोलता हूं, बच्चा सुन ही नहीं रहा है। पर पापा को पता ही नहीं है, मम्मी को पता ही नहीं है कि बच्चों को कान नहीं होते हैं। बच्चा ऑब्जर्व करता है। सो यू कीप ऑन टेलिंग योर चाइल्ड, बेटा मोबाइल नहीं, कितना मोबाइल वापरता है, कितना पागल हो जाएगा, मतलब
हम बोलते रहते हैं बच्चे को मोबाइल मत वापर, पर मम्मी पापा तो रोज मोबाइल वापरते हैं। सो मेक इट वेरी क्लियर, बच्चों को कान नहीं होते, बच्चा पापा मम्मी को ऑब्जर्व करता है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद में बच्चे को स्कूल में डांट पड़ती है, वो आके घर पे बताता है, और वापस फिर मम्मी भी डांटती है और पापा भी डांटता है। अब होता ये है, पापा मम्मी ने तो कोई पेरेंटिंग क्लास किया ही नहीं है, जैसे उनके पापा मम्मी ने उनको ट्रीट किया वो अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। वो भी चालू कर देते हैं चिल्लाना, तू तो पगला है, तू तो इररिस्पॉन्सिबल है, तू तो तेरा होमवर्क नहीं करता, तू तो गंदा है, सुबह उठता नहीं, दिन भर मोबाइल। वो बेचारा बेटा बच्चा कुछ बता रहा है पापा मम्मी को और गाली पड़ती है। एक बार गाली पड़ी, 2 बार पड़ी, तीसरी बार बच्चा बताना ही बंद कर देता है। होता है ना? अब समझ में आया गलती किसकी हो रही है? गलती पेरेंट्स की हो रही है, बच्चे की नहीं हो रही है। पेरेंट्स को पता ही नहीं है बच्चे के साथ डीलिंग कैसे करना, बच्चे का माइंडसेट कैसा होता है। और एक अच्छी बात बताई विजय भाई ने, वो ये बताई कि कोई भी सेंटेंस एक सेंटेंस में बोलो, जैसे कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तुमने ये गीला तौलिया यहाँ रख दिया, आई डिड नॉट लाइक इट। बस उसके पीछे आगे पीछे ये वो रामायण महाभारत सब मत चालू करो। बच्चा जो है ना, बच्चे का माइंड अलग रहता है, वो नहीं समझता है। आपने उसकी बातें को सुनना है। देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। डू नॉट, मतलब आपने अगर बच्चे को क्रिटिसाइज भी करना है, एक सेंटेंस में बोलना है, दैट इज ऑल। एक बात और बताई, बच्चे के कैरेक्टर को लेके कभी भी उसको बातें नहीं करना। उसके जो इमोशन, उसका जो कैरेक्टर है, तू तो ऐसा ही है, तुझे तो जरा ही प्रेम नहीं है, तू तो बेवकूफ है, तू तो मतलब एनीथिंग वी कीप ऑन सेइंग, और वो रिपीट करते जाते हैं और बच्चे के माइंड में बैठ जाता है वो। सो डू नॉट, बच्चे को ठेस मत लगाना। एक बात और अच्छी बताई, वो ये बताई कि हम बहुत तारीफ करते हैं, मेरा बच्चा तारीफ तारीफ करते रहते हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे की बहुत तारीफ कर लेते हैं और बच्चा अभी हवा में उड़ने लगता है, थोड़े दिन के बाद में फिर अपन गाली देना चालू कर देते हैं। सो यू बी पैसिफिक, बिकॉज दिस पेरेंटिंग थिंग, क्योंकि हमने सीखा नहीं, हम अलग तरीके से रिएक्ट करते थे, राइट? हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने जो हमें ट्रीट किया, वही तरीके से हम भी कंटिन्यू हो गए। पेरेंटिंग का एक साइंटिफिक तरीका होता है, विच वी नीड टू लर्न। डू नॉट लेबल योर चाइल्ड, मेरा बच्चा तो चैंपियन है, करो, बहुत अच्छी बात है, बट एक लिमिट में करना, करेक्ट? उसके बाद में गिव योर चाइल्ड अ चॉइस, उसको चॉइस देना, बेटा ये ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। उसको चॉइस देना, अपना ओपिनियन थोप नहीं देना। देखो ये जो सब बातें बता रहा हूं मैं भी गलती कर रहा हूं, बट टुडे आई एम लर्निंग, आज मैंने सीखा हूं। अब इसको मैं और हम लोग और डीप में जाएंगे। Yes. हम इसका जो प्रोग्राम है, पूरा का पूरा प्रोग्राम हम करेंगे। एंड क्योंकि इससे अगर मेरे बच्चे की, अच्छा मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, पर मेरे जो पोते पोती हैं उनका तो मैं बराबर कर दूंगा ना माइंड प्रोग्रामिंग। और अगर मेरा बेटा गलती करता है तो मैं उसको शेयरिंग करूंगा मैं, कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसे करते हैं, बच्चों का माइंड ऐसा होता है, उनसे ऐसे बातें की जाती है, राइट? आई होप दिस सेशन वाज रियली वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड सीखने को मिला। और बहुत Yes. लोगों के बच्चे हैं, अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, आप भी गलती करते रहोगे, तो याद रखना, बच्चे को कोई जरूरत नहीं है काउंसलिंग की, पेरेंट्स को जरूरत है। अगर पेरेंट्स समझ गए, पेरेंट्स ने अगर बच्चों को बराबर तरीके से बातें की, तो बच्चा जो है विल बिकम अनस्टॉपेबल, योर चाइल्ड विल बिकम वेरी पावरफुल, क्योंकि उसको दुनिया में फेस करना है लोगों को। बच्चे का माइंड सेट को बहुत अच्छे से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Yes. सो Yes. Thank you so much. हाँ जी, सो नाउ So, विजय,
We can Yeah. invite you. Please invite. या मैं Sandeep संदीप को एक लाइन थोड़ा सा जोड़ लेता हाँ हूँ जी, कि करिए एक करिए। रह गया था कि हम लोग बहुत बार ना बच्चों को बोलते कि बेटा मेरे को बाप मत समझ, माँ मत समझ, दोस्त जैसे रहो। तो इस पे ना सनी देओल और धर्मेंद्र का बहुत अच्छा कपिल के शो में आया था। तो धर्मेंद्र जी बोलते हैं सनी देओल को कि बेटा तू मेरे को ना बाप मत समझ, दोस्त है हम लोग। तो सनी देओल बोलता है जब मैं फिर मेरे पापा के यहाँ जाता हूँ दोस्त जैसे कुछ शेयर करता हूँ तो वो आप ही अपना बाप बन जाते हैं। देख पुत्र, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है कि जब आप शेयर कर रहे हैं, आप मानते हैं कि बच्चों के साथ दोस्त जैसे रहना है, तो यू हैव टू लिव लाइक अ दोस्त। फिर बाप नहीं बन जाना। अगर उसने कुछ शेयर किया कि पापा मैंने आज सिगरेट पी लिया, वो बन गया आप बाप, तो हो गया, अगली बार नहीं बताएंगा। तो सनी देओल के कपिल के शो में एक आप क्लिप करो, बहुत जबरदस्त ह्यूमरस था कि जैसे मैं शेयर करता था पापा को कुछ, मैंने कुछ किया या ड्रिंक किया, तो पापा ना बाप बन जाते थे। फिर बेटा देख पुत्र, फिर ज्ञान देना चालू। तो ये ध्यान रखना, अगर आप बच्चों के साथ दोस्त जैसे रहना चाहते हो तो वाकई में दोस्त जैसे रहो। कुछ शेयर करता है तो उसको सुनो, समझो कैसा रिएक्ट करना, टेक सम टाइम, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। यस, यस, थैंक यू सो मच। इट्स